Hello and welcome everyone. I am Hassan Zohail from SoloWord Academy, and in this video we'll be going to study Unit 4 of Artificial Intelligence Subject Code 417. This is the Data Science unit and we'll be covering the first two main topics of this chapter. So let's get started. So first of all, as you can see, this is the cover page. Let's move forward. Alright. So we'll be going to study what is data science, applications of data science. The glossary one, it's a section of all the terms which were like, I suppose, difficult to understand. So I've put in this glossary section. And last is the practice questions. After the session, when you understand both of the topics, you will get some questions to practice. Those will be subjective questions. You can practice them for your benefit. All right. So first is data science. What is data science? A domain of computer science where we extract insights from available data with the help of scientific methods, algorithms, and statistics. Scientific methods, algorithms, and statistics. These are three, more are there, but these are the three main methods of data science, like the main processes which are done in data science. So it is a domain, it is a branch of computer science where we extract insights. Insights is kind of like important data from available data, the useful data we extract from available data with the help of scientific methods. You will study the scientific methods in the later in the course, but yeah, we'll just get to the word scientific method. Then algorithms, some kind of set of patterns. Then statistics. Now data is divided into two types of, like, first is structured data and second is unstructured data. You can say raw data. Unstructured data is also called as raw data. So these are the two types of data. Fine. Structured data. Data that has a predefined format, which is, like, you can say it is already well defined and we can understand it in a very well manner because it is presented in a very good manner and can be easily searched. If you make an Excel sheet out of something like total students, like take one student from your class and one column should be of the date, like 21 1 24 22, like this, all the dates, and second would be present or absent. Like, you can search from that Excel sheet that on a particular date that person was absent or present. If I want to see that on October 1st 2023 was that person present, I can search in that workbook. So that data is properly organized, so I can easily search for that. And that data is also stored in databases because you cannot write every data. Examples of structured data are dates, phone numbers, product codes, and other numerical or categorical data. Next is unstructured data. Data that does not have a specific structure, like you can say an array of numbers like 21, 5, 6, 11, 99, 108, 445. These, like this type of data is unstructured data because you are not getting on any point with the help of that data. That is not structured. We don't know like what these numbers are for. Fine. So examples of unstructured data are emails. Like it's like random. अगर मैंने भेजा ईमेल और किसी और ने भेजा उसी पर्टिकुलर बंदे को, उसके पास ईमेल्स ऐसे स्टैक हो रहा है, उसको नहीं पता भाई कि कैसे स्ट्रक्चर है डेट वाइज. अगर डेट वाइज स्ट्रक्चर होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर नॉर्मल हम सीरीज देखें तो हमें नहीं पता. ठीक है ना. फोटोज, if your phone's gallery is organized by chance with the date 24th नवंबर को आपने ये चीज़ ली थी, 11 नवंबर को आपने ये थी, अगर इस तरीके से है तो वो स्ट्रक्चर डेटा में आएगा. लेकिन अगर आप सिंपल एक गैलरी है फोटोज़ की, तो उसका कुछ नहीं पता. सेम वीडियोस, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स और रिपोर्ट्स. ठीक है ना. अगर हम इनको स्ट्रक्चर नहीं करेंगे प्रॉपरली, सो वी विल नॉट गेट टू एनी कंक्लूजन. फाइन. Data scientist. Data scientist is a person, fine, who uses data to solve problems and create value for an organization. Like if I am a data scientist for a particular company, so I am extracting the main, the valuable things from that data. If I have the data like दिस क्वार्टर में इतनी सेल हुई थी, इस क्वार्टर में उतनी सेल हुई थी, अगर मेरे पास ये डेटा है कंपनी का अवेलेबल डेटा, उसमें निकालता हूँ कि यार मान लो फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा सेल हुई थी एज कम्पेयर टू द फोर्थ क्वार्टर, तो मैं ये समझूंगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर में है उसमें क्या क्या ऐसे फैक्टर्स आए थे जिसकी वजह से लेट्स से ज्यादा सेल आई थी. अगर मान लो मेरी कंपनी है स्वेटर और जैकेट बनाने की, तो मुझे ये पता चलेगा कि यार फर्स्ट क्वार्टर में जनवरी मंथ भी आता है जिसमें लोग
जैकेट्स लेते हैं ऑब्वियसली, ठीक है ना। अब लास्ट में यानी कि अगर तुम लेट्स से अगर तुम समझो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें जैकेट इतनी नहीं ज़रूरत होती है, ठीक है ना। अब इफ़ वी गेट टू दैट कंक्लूजन, अगर हम इस कंक्लूजन पहुंचे कि यार ठीक है, आप समझ में आता है, फैक्टर्स आपने समझ लिए, तो आपको आपके पास डेटा आ गया कि अगर हम जनवरी में ज़्यादा जैकेट्स बनाए, सो वी विल गेट higher profits, we will get more customers, no? So that is the thing. If we'll advertise a company in the month of January, so we'll get surely more customers. And how that happened? With the help of data science. So data scientist is not just one person, it's a whole team of data scientists and data experts and data analysts. All the things are there, but just one term was there, data scientist, so I thought I should explain this. Fine. A data scientist can also use machine learning and artificial intelligence to automate process and generate insights. If he is not like trying to do manually, अगर data मतलब ट्रेमेंडस अमाउंट में, ठीक है ना, हजारों लाखों कस्टमर्स का डेटा है उसके पास, तो ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है कि एक बंदा है, पूरी एक टीम भी मैनुअली काम नहीं कर पाएगी. सो इन दैट केस द कंपनी और दैट टीम विल यूज एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग टू ऑटोमेट द प्रोसेस विच द टीम इज डूइंग मैनुअली, ऑटोमेटिकली करवाने के लिए उसे कहते हैं ऑटोमेटिंग द प्रोसेस, ठीक है, और जनरेट इनसाइट्स, यूजफुल डेटा. Components of data science. This image was taken from your book only. Fine. Components of data science: statistics, visualization, machine learning, and deep learning. So what are statistics? Science of collecting and analyzing numerical data in large quantities in order to gain helpful insights. Collection and analyzation of data in huge amount is called as statistics. ठीक है ना. अब खास तौर पे हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में हम न्यूमेरिकल डेटा पर ही बात करते हैं. आपने शायद छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि यार आप पिक्टोरियल ग्राफ बनाते हैं, उसमें एक स्माइली इज इक्वल्स टू 4 पीपल, ठीक है ना. इस तरीके से वो चीज़ चलती नहीं है, ठीक है. आप छोटी क्लास में आपको समझा दिया, आपको सिर्फ पढ़ा दिया यूं ही, ठीक है ना, जस्ट बिकॉज कि आपको ग्राफ या फिर डेटा सेट करने का, एक डेटा को अरेंज करने का एक तरीका आ जाए. लेकिन पिक्टोरियल ग्राफ या सब चीज़ों का कोई महत्व होता नहीं है, ठीक है, इन द रियल वर्ल्ड. तो बहरहाल हम यूज़ करते हैं कैसे कैसे चीज़ें, हम न्यूमेरिकल डेटा पे काम करते हैं, न्यूमेरिकल डेटा को अरेंज करते हैं ताकि हम न्यूमेरिकल डेटा से ही इनसाइट्स निकाल पाए. But that thing is different if we take out the numerical data and we convert that numerical data into graphs for visualization purposes. That thing is in the next step, visualization. Tools used for accessing huge chunks of data so as to make interpretation easy with the help of visuals. Here's a chart icon also. There's a chart icon also, you can see. So this is the thing, that icon is showing somewhat graphs. This is the pie chart. So if we arrange some data, like you have studied in your, I suppose in your junior classes, like the composition of air, 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन 38%, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी. तो दैट पिक्टोरियल ग्राफ, इंस्टेड ऑफ शोइंग यू पिक्टोरियल ग्राफ, अगर सॉरी पाई चार्ट अगर आपको नहीं दिखाते, तो क्या करते हैं वो नंबर्स में अरेंज करते हैं. नंबर्स को याद रखना बहुत मुश्किल है. आपको पता है कि यार पूरी एयर है, ठीक है ना, उसमें 78% नाइट्रोजन है. कैसे याद हुआ आपको? ये क्या करा मैंने, पूरे पाई चार्ट में थोड़ा सा मतलब मेजर पोर्शन मैंने काट दिया, तो इनके मेरे को पाई चार्ट का अभी भी थोड़ा सा विजुअलाइजेशन है. तो विजुअलाइज कर दोगे, एक तो याद रखने में लाइक दिस इज वेरी इजी एज कम्पेयर टू द न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल एरेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है ना. So visualization is like taking that numerical data and converting it into some kind of image or graph or something like that. Machine learning, exploration of building and study of algorithms to make prediction about the future data. If I had available data like क्वार्टर वाला, ठीक है, जैकेट बनाने की वाली कंपनी वाला डेटा था मेरे पास, तो मैंने क्या करा, उस डेटा से लेके मैंने ये बोला कि जनवरी में ज़्यादा मार्केट करो, जनवरी में ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करो, जनवरी में ज़्यादा प्रोडक्शन करो. क्यों? मैंने प्रेडिक्शन लगा दिया, जस्ट बिकॉज के आई यूज द प्रीवियस डेटा जो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने उस डेटा को यूज करके मैंने क्या करा, प्रेडिक्शन बना दी अगले क्वार्टर की, ठीक है ना. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही ज़्यादातर काम आती है. कंपनीज लाइक वांट टू स्टे अवे फ्रॉम दैट लॉसेज, ह्यूज लॉसेज, एंड अगर आप फालतू पैसा खर्च कर रही है कहीं कंपनी, तो उसको लिमिट करना है. अब लिमिट कैसे करेगी? प्रेडिक्शन करके. प्रेडिक्शन कैसे होंगे? पुराने डेटा को यूज करके और डेटा साइंटिस्ट की मदद लेके, या फिर डेटा साइंस की मदद लेके, एक तरीके से, ठीक है ना. Then is deep learning. This is a very new branch of machine learning research where the algorithm decides which analysis model to follow. Models, what are models? Let's assume models as a bowl. If you have a bowl, you can put whatever you want, but you have to put useful things, you have to put edible things, you have to put
good, the good thing. Saying fine, so you have the bowl, that is the model, and you put some data and you put some food into your bowl and you mix it. If that bowl, if the food of that bowl tastes good, you like it, you make more. But if you don't like it, you know, throw it away, or you know, you just reuse it or something like that. Then you make another batch, then you make another bowl, and then you again put some data. But you have learned that by that previous model was bad, previous bowl was bad, just because it was having too much salt. So what we have done, in the new patch we did not put much salt, so the salt was the issue, we reduced it, we learned from our mistakes. So that model will be newer, fresher and better. So now when you tasted it, it was fabulous, so you liked it, and what you did, you shared to your friends shared it to their friends, and you made a whole business out of it, like sharing bowls and everything. So that is what we call as machine learning, like learning from previous mistakes. And that bowl was the model in which you put the data, in which you put the food, fine. So where the algorithm decides which analysis model to follow. Now if we move forward, this PDF, the PDF of this, you know, the whole which I am explaining, you will get in the description box, as well as I have put some questions also, that also you will find in the description box. Data, don't worry about that, huh? Data science is about, data science comprises of visualizing data, we have already studied, working with statistics and analytical methods. Like you are seeing bar graphs, you are seeing pie charts, and you are analyzing the like major portion is of nitrogen because it is 70%. But whereas in companies the scenario is whole different. Why is that so? Because data is not just about 4 or 5 elements, 4 or 5 components का data नहीं होता, वहां पे लाखों ऐसी टेबल ही टेबल भरती रहती है, उसमें हजारों लाखों कॉलम, हजारों लाखों ऐसे इस तरीके से रोज, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें. तो यू कैन नॉट एनालाइज एंड यू कैन नॉट जस्ट प्रेडिक्ट डेटा जस्ट बाय लुकिंग एट दैट. सो इसलिए आपको बहुत हैवी और बहुत ज़्यादा ऐसे टूल्स चाहिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेटा को हैंडल कर पाए और उसको विजुअलाइज कर पाए, ठीक है ना. मशीन एंड डीप लर्निंग अदर वास्ट फील्ड्स ऑफ डेटा साइंस एज टूल्स, दीज आर लाइक सम ऑफ देम. मशीन लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, डीप लर्निंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन द थिंग इज वो कुछ कुछ उसमें चीज़ें टूल्स की तरह एक्ट करते हैं, टूल्स की तरह यूज़ कर सकते हैं इसको. प्रोबेबिलिटी एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव मॉडल्स, ट्रेन्ड स्पीशीज टू टैकल डेटा, फाइन. These are the, you know, models. I already told, predictive models are kind of species, are kind of bowls to tackle new data. अब आप न्यू डेटा कैसे बना, आपने वो बोल अच्छा लगा, आपको खाना अच्छा लगा उस बोल का, तो आपने नया बनाते गए नए लोगों के लिए, लेकिन नए लोगों के लिए खाना सेम था, खाना सबको अच्छा लगा. तो ये एक तरीके का मॉडल का एग्जाम्पल है, ठीक है ना. न्यूरल नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन फॉर सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स. न्यूरल नेटवर्क्स एक तरीके से एल्गोरिथम समझ लो, ठीक है ना. सेट ऑफ पैटर्न्स एल्गोरिथम्स होते हैं. और एल्गोरिदम इज लाइक ऐसा एल्गोरिदम जो ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए, जो ह्यूमन टेंडेंसी को, यानी कि एक ह्यूमन नेचर को प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है ना. अब पैटर्न रिकॉग्निशन के लिए ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन ब्रेन जितना अच्छा कर लेगा, एक नॉर्मल कंप्यूटर विदाउट एनी एआई और समथिंग वो चीज़ नहीं कर पाएगी एआई, ठीक है ना. वो चीज़ नहीं कर पाए कंप्यूटर. अगर उसमें आप एआई कर दें, एआई भी आप कैसे कर रहे हो, न्यूरल नेटवर्क्स उसमें डाल रहे हो. न्यूरल नेटवर्क से क्या हो रहा है, अगर मैं प्रॉम्प्ट डाल रहा हूँ हाय हाउ आर यू, तो उसमें ये नहीं आ रहा फाइन, या फिर ये नहीं आ रहा वर्किंग गुड, इस तरीके से नहीं आ रहा. ह्यूमन जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू. मैं अगर चैट जीपीटी से बात करूँ तो ऐसी रिस्पॉन्स आएगा कुछ ना कुछ. अब कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, ये एक ह्यूमन अलाइक रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास, तो वो न्यूरल नेटवर्क्स का ही काम है. ऐसे एल्गोरिदम जो ह्यूमन नेचर को, ह्यूमन बिहेवियर को मिमिक कर पाए, ठीक है ना. अब द थिंग इज, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ टॉपिक्स इन योर बुक, व्हाई डेटा साइंस. Data science is used by companies, market giants, and why it is used. It is used for performing, developing, performing, developing and growing their business. परफॉर्मिंग, डेवलपिंग एंड ग्रोइंग देयर बिजनेस, ठीक है ना. अब परफॉर्म करना है उनको मार्केट में अच्छा, या फिर परफॉर्म मतलब इंसान आपको उनको सस्टेनेबिलिटी मतलब उनको अचीव करनी है, सर्वाइवल उनको करना है, ठीक है ना. डेवलप करना है और ग्रो करना है, ग्रोथ इंपॉर्टेंट है. हाउ, कैसे ये चीज़ होती है. अब हाउ का आंसर इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है बाय डेटा एक्सपर्ट्स. डेटा एक्सपर्ट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ अलग अलग टाइप के डेटा साइंस में जो फील्ड्स में जो मास्टर करते हैं उन सब कलेक्शन कहा जाता है डेटा एक्सपर्ट, ठीक है ना. बाय टेकिंग अ डेटा बेस्ड अप्रोच इंस्टेड ऑफ
कोई और अप्रोच लेके हम क्या ले रहे हैं, कौन सी अप्रोच ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ डेटा बेस्ड अप्रोच, यानी कि डेटा के साथ हमें जूझना है, डेटा के साथ हमें टैकल करना है। अगर हम वो अप्रोच लेके चल रहे हैं तो हम मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग यूजफुल डिसीजंस फॉर आवर बिजनेस। These insights help the companies to evaluate themselves, boost themselves in the market. अगर आप कोई गलती है तो उस डेटा से आपको समझ में आएगा भाई कहाँ लैग कर रहे हैं और आप कैसे अच्छा मार्केट में परफॉर्म कर सकते हैं। Now we'll come to the topic applications of data science. What are the different applications of data science? How, in which factors and which sectors data science is used? All right, I suppose this heading should not be there. It should be application of data science. Fine. Data science has a great impact on several sectors. ये आपकी बुक में डायग्राम था, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करा क्योंकि बस थोड़ी फिट नहीं हो रहा था बाहर। सो बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, AI, कन्वर्सेशन बॉट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, ई कॉमर्स मतलब यानी कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वाला सीन जो है। नेक्स्ट इज AI कन्वर्सेशन बॉट्स। AI से जो बात करते हो ना आप, चैट GPT और ये सब बार्ड ये सब कैसे होता है डेटा साइंस में, कहाँ कहाँ यूज होता है। ठीक है ना। ना फर्स्ट इज बैंकिंग। बैंकिंग में देखो मेन पॉइंट्स अगर आप लिखो, मार्क्स कैसा आएगा अगर आपको छोटे कम वैसे 1-2 मार्क्स में आता है तो आप कैसे कर सकते हो इसको, कस्टमर सर्विस, रिस्क मॉडलिंग और फ्रॉड डिटेक्शन। ठीक है ना, ये सारे बुक का चीज़ है, बस उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है ना। इनेबल्स द टूल्स टू हैव बेटर प्रेडिक्शन अबाउट न्यू डिसीजंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट। ठीक है ना। अब बैंकिंग जब हम यूज़ करते हैं डेटा साइंस को बैंकिंग में, तो हमें क्या मिलता है, ऐसे टूल्स मिल जाते हैं जो हम ये क्या, देखो बैंकिंग इज़ अ वेरी वास्ट सेक्टर, इट इज़ अ वेरी डेंस सेक्टर। अगर आप उसमें कुछ भी गलती करते हो तो आप पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। ठीक है, तो आपको जानना पड़ेगा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो और गलती नहीं भी करते हो, अगर आप कुछ स्टेप रिस्क लेके चलते हो ना और वो बाद में गलत साबित हो जाता है या फिर बाद में गलत मोड़ ले लेता है, तो बहुत हैवी लॉसेस झेलने पड़ जाते हैं, इवन बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो ऐसे रिस्क्स को मिनिमल करने के लिए या फिर ऐसे रिस्क को मिनिमल करने के लिए हम यूज करते हैं डेटा साइंस। यानी कि हमने कुछ यूज किया, क्या अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो क्या इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर वी आर गेटिंग फ्रॉम डेटा साइंस लाइक इट इज गुड, अगर ज्यादा प्रोस मिल रहे हैं तो हम वी विल डेफिनेटली गो फॉर इट। फाइन। बेटर प्रिडिक्शन, अब इट्स जस्ट अ प्रिडिक्शन, ये कोई फ्यूचर या रियलिटी नहीं है जो बता रहे हैं, बट डेटा साइंस बहुत हद तक एक तरीके से अच्छे प्रिडिक्शंस करने के लायक है, अच्छे प्रिडिक्शंस करने की ताकत रखता है। Positive or negative impact we can figure out. Next is better customer support, because the customer's data can be monitored and analyzed so as to get better service overall. For example, you will understand this point later in the video, because I have explained that how the recommendation systems work in the Amazon, Flipkart market or just the e-commerce market. So in that section I have already told that what are recommendation system and how data science is used in those recommendation systems. But here we can see better customer support we will get in the sector of banking if we use data science, because the customer's data, if my customer is taking a loan in the festive season, दिवाली करीब है और मेरे जो मोस्टली कस्टमर्स है, जो भी लोन वाले वैसे कस्टमर जिनको लोन लेना है, ठीक है ना, वो क्या कर रहे हैं, जो भी लोन वाले कस्टमर्स है वो सब फेस्टिव ऑफर पे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि कारें या बाइक या घर सस्ते मिल रहे हैं, थोड़ा बहुत दिवाली का ऑफर लग जा रहा है उसमें। ठीक है ना, अगर 5 लाख की कार है तो उनको 4.5 में मिल जा रही है, तो ये दिवाली ऑफर है। अब वहां से ऑफर मिल रहा है उनको, तो इसलिए लोन वो उस टाइम ले रहे हैं। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई तो मैं क्या करूंगा, मैं भी अपने वहां अच्छे रेट्स निकालूंगा, थोड़ा सा कंसेशन कर सकूंगा मैं एज कम्पेयर टू अदर डेज। अगर अदर डेज मान लो मैं लेट से 7% रख रहा हूँ, ठीक है ना, और मुझे रखना कितना चाहिए, 6.5, मैं रख कितना रहा हूँ और डेज में थोड़ा सा महंगा 7%। अब मैं दिवाली पे कर दूंगा 6, तो पूरा क्या हुआ, 1% लोगों को लगा कम हो गया, लेकिन एक्चुअली मेरा आधे % कम हो। तो बहरहाल अगर मैं अच्छे ऑफर्स निकालूंगा इन द नियरली अबाउट द फेस्टिव सीजन, दिवाली के करीब है और जो भी फेस्टिव सीजन हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि यार कस्टमर्स वहां पे मेरे पास ज्यादा आएंगे। क्योंकि अगर कोई अलग अलग बैंक 6.25% या इस तरीके से दे रहे हैं, तो मैं कितना दे रहा हूँ, 6%। ये बात कैसे समझ में आई मुझे, ये बात है डेटा साइंस के हिसाब से। मैंने अभी बैठ के ऐसे ये चीज़ कर दी, लेकिन अभी बहुत सारे इसमें प्रोसेस होंगे। अगर रियल लाइफ में ये चीज़ अप्लाई होगी ना बैंक्स में, तो बहुत ज़्यादा बैक एंड प्रोसेस चलते रहते हैं, या फिर बहुत सारे रिव्यूज़, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। लेकिन यूज़ किसका मेनली हो रहा है, डेटा साइंस का। डेटा किसका निकला,
दूसरी कंपनीज का, जब वो कार बेच रहे हैं, कार कब बेच रहे हैं उनको, अगर मैं कार लोन के हिसाब से बात करूं तो मुझे पता ही चला कि जो बाकी जो क्या कहते हैं उन्हें, शोरूम्स हैं, फिर ऐसे कंपनीज हैं, तो वो नियरली अबाउट फेस्टिव सीजन के पास ज़्यादा बेच रहे हैं एज कम्पेयर टू द अदर डेज। तो मैं भी क्या करूँगा, उस डेटा को एनालाइज करवाऊंगा या खुद करूँगा मैं, और उसके बाद मैं भी फेस्टिव सीजन पे अच्छे ऑफर्स निकालूंगा इफ़ आई एम अ बैंक। नाउ ड्यू टू दैट ओवरऑल परफॉर्मेंस या ग्रोथ और प्रॉफिट्स लाइक एक्सपोनेंशियली बढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियली, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस। नेक्स्ट इज द फाइनेंस वन, हाउ इन फाइनेंस डेटा साइंस इज हेल्पफुल। इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, रिस्क एनालिटिक्स एंड एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग. With data science, the process of automation of risk analysis has come into play, leading to low risk and high value decisions. If I'm using data science in the field of finance, so the process of automation of risk analysis, like if I have a team of like say 50 people are in a team, wherein that team is helping to figure out what risks could be there in the फ्यूचर पॉलिसीज। अगर मैंने पॉलिसी बनाई तो यार मैं टीम को दे रहा हूँ कि यार ये पॉलिसी बनने वाली है, इसको मार्केट के हिसाब से तुम 1 महीना लगा दो एनालाइज करने में, लेकिन मेरे को बताओ। अब उनकी 1 महीने की सैलरी, वो 1 महीने के बंदे, वो 50 लोग। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट कैन आई डू इज आई कैन यूज डेटा साइंस फॉर ऑटोमेटिंग दैट प्रोसेस। ऑटोमेशन हो जाएगा उस प्रोसेस में, यानी कि रिस्क एनालिसिस का जो प्रोसेस है वो उसमें ऑटोमेट हो जाएगा। अब उसमें 4 ही बंदे चलेंगे, क्योंकि डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस या इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ 4 बंदे चाहिए होंगे, तो कितने कम हो जाएंगे, सीधे 46 पे कम हो जाएंगे मेरे। दैट हैज़ ऑल्सो हेल्प्ड अ लॉट। अब उनके लिए, बेचारों के लिए बहुत बुरा है जिनको मैंने निकाला जॉब से, लेकिन द थिंग इज कि अगर आप एज ए कंपनी का पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो डेटा साइंस जबरदस्त है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज enabled companies to predict customers interests and future decisions. Like if I want to explain this is, फाइनेंस में अगर मैं जाना चाहूँ, ठीक है, बैंक का फाइनेंस थोड़ा बहुत रिलेटेड है, लेकिन स्टिल अब मैं डेटा साइंस से ये एनालाइज कर सकता हूँ कि यार मेरे कस्टमर्स किस जगह, किस टाइम ऑफ द ईयर, किस टाइम ऑफ द डे जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर किस ऑफर को ज़्यादा अवेल करना पसंद करते हैं किस टाइम में ऑफ द ईयर, ठीक है ना। और उसके हिसाब से मैं अपने डिसीजन निकाल पाऊँ। वही दिवाली वाला ऑफर मैंने बताया आपको, दिवाली वाले ऑफर में मैंने एनालाइज तो किया, साथ ही साथ आई हैव मेड फ्यूचर डिसीजंस कि यार अराउंड द फेस्टिव सीजन आई वुड गिव द पीपल less interest rates and better offers. That is the thing. So the data science helped me to make future decisions too. Next is NLP and DM, natural language processing and data mining. These two terms have been explained in well detail in the glossary section, but these terms, like just take an overview of these terms. These two processes have contributed to transformation of information for better understanding of the customer's behavior from the content from the company they consume. What does this mean is, for better understanding of the customer's behavior, like if I am using data science to track my customers' choices, so for a long period of time, after a very long period of time, I will get to know that this particular customer has interest in this. उसको ये टाइप की कार पसंद है, ठीक है ना, उसको ये टाइप का घर पसंद है, उसको ये टाइम में काम करना पसंद। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर की स्पेंडिंग, कस्टमर के हर तरीके का बिहेवियर कंपनी समझ लेगी जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा साइंस। फाइन। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट, हाउ डेटा साइंस has helped in transport, optimizing vehicle performance, self-driving cars and vehicle monitoring system, creating a safer driving environment for the drivers. How? Just take an example, like if I install a model in a car, that model what will do is it will analyze the car's performance by every factor. पेट्रोल कितना भरवाता है हर समय, ठीक है, इंजन मतलब किस गियर पे गाड़ी चलाता है, ठीक है ना, ऐसे दसियों फैक्टर्स जो कार के परफॉर्मेंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें एनालाइज करवाऊंगा एक मॉडल से, तो मुझे क्या पता चलेगा कि यार व्हीकल के परफॉर्मेंस पे किस समय ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ। इफ़ आई इंस्टॉल अ मॉडल और उसने एक दिन में ये समझ लिया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन बेसिकली एक दिन में समझ लिया कि यार ये सुबह को जब ये ऑफिस जा रहा होता है तो ये गाड़ी मॉडरेट में चलाता है, यानी कि एक इकोनॉमिक उसमें चलाता है। जब भी घर से मतलब आ रहा होता है ऑफिस से शाम को 6 बजे, कभी बार दोस्तों को भी लेके आ रहा था, ठीक है, कभी इस टाइम पे ये भी हो रहा था, उस टाइम पे वो भी, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार शाम को ये थोड़ा सा इकोनॉमी से बाहर निकल जाता है, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे चलाता है गाड़ी, तो उस टाइम में ऑप्टिमाइज ना करूँ तो अच्छा है। मैं इकोनॉमी पे अगर सुबह के टाइम पे अगर ऑप्टिमाइज कर दूँ
व्हीकल की परफॉर्मेंस तो क्या रहेगा, व्हीकल की लाइफ तो बढ़ी जाएगी। सेकंड चीज़ ये है कि मेंटेनेंस कम लगेगा। हर बार मेंटेनेंस करवाने से अच्छा कि यार एनालिसिस करके प्रॉपरली तब जाके मुझे पता ये चल सकता है कि यार अगर मैं व्हीकल की परफॉर्मेंस बढ़ा दूं जस्ट बाय एनालाइजिंग द फैक्टर्स, जस्ट बाय एनालाइजिंग टाइम और ये सब चीज़ें, तो मैं मेंटेनेंस की कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल है self-driving cars of course, like Tesla and everything, data science, AI, everything, computer vision and recognition system, everything has been used in the making of these self-driving cars. तो डेटा साइंस का भी बहुत बड़ा कहीं ना कहीं रोल है, ठीक है ना। अब थर्ड एक चीज अच्छी सी लगती है, एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, कंपनीज लाइक उबर यूज डीएस फॉर प्राइस ऑप्टिमाइजेशन एंड प्राइस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, व्हीकल अवेलेबिलिटी एंड वेदर पैटर्न्स। मतलब इफ अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ प्लेस वेर इन नो व्हीकल इज अवेलेबल, बहुत कहीं रिमोट या फिर एक तरीके से स्कर्ट्स में बुला रहा है सिटी के, ठीक है, या फिर एक तरीके से कंट्री साइड में बुला रहा है, तो जो भी स्कर्ट्स होंगे सिटी के वहां पे व्हीकल इतनी अच्छी नहीं मिलती है, हर समय व्हीकल नहीं अवेलेबल है। तो व्हाट आई कैन डू इज, मजबूरी समझ रहा हूँ मैं, मजबूरी समझ रहा हूँ, सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत दिया है, हर रोज ऑफिस जाना होता है उसको। सो व्हाट कैन आई डू इज आई कैन मेक द प्राइस अ लिटिल हायर। अगर उसको मान लो, अगर एक बंदे को हाईवे या फिर एक मेन पार्ट ऑफ द सिटी से एक ऑफिस पहुंचना होता है, ठीक है, एबीसी कंपनी पहुंचना होता है, उसको लगता है 1 किलोमीटर और मैं उसके लेता हूँ 50 रुपये, ऊबर हूँ अगर मैं, ठीक है, और अगर वो बंदा रहता है 2 किलोमीटर के फासले से तो मुझे लेने चाहिए 100 रुपये, लेकिन मैं 110 रुपये दिखाता हूँ। वो 10 रुपये मेरा एक एक्स्ट्रा बोनस, जस्ट बिकॉज आई एनालाइज द सप्लाई एंड डिमांड, I analyze with the help of data science and then I am able to make the decision that if I'll make a price a little higher, so what I will be able to achieve is bonus. Next is like if a person is standing on the skirts of the city और skirts of the city में अच्छा मौसम है और middle of the city में कोई अच्छा मौसम नहीं है, ऐसा होता है। Like if I live in हल्द्वानी, तो अगर हल्द्वानी में देखोगे कि आप कि कभी कभार ऐसा होता है कि बारिश हो रही होती है हल्द्वानी में और बारिश नहीं हो रही होती है काड़ोदा में, मुश्किल से 4 किलोमीटर का फासला है काडोदा में, बट द थिंग इज के वेदर कंडीशंस अगर डिफरेंट होंगे, सो व्हाट आई विल बी एबल टू अचीव इज आई विल बी एबल टू अचीव अ लिटिल प्रॉफिट, अ लिटिल बोनस। फाइन। थर्ड इज लाइक लोकेशन एंड व्हीकल अवेलेबिलिटी, आई एक्सप्लेन दिस। डीएसएस डेटा साइंस फॉर प्राइस ऑप्टिमाइजेशन, आई कैन मेक द प्राइस go lower, I can make the price go high. If I am a greedy company, I can make the price go little higher. Or if I want to make trust in that person, like every other company is taking 110 रुपये और मैं ले रहा हूँ 100 रुपये या मैं ले रहा हूँ 90 रुपये, तो एक बार ट्रस्ट बन गया, तो वो बंदा ही सोचेगा कि यार हमेशा उबर सस्ता लेता है, बाकी जितनी कंपनियां हैं वो सब क्या करती हैं, महंगी लेती है, तो बार बार वो मेरी सर्विस ही यूज करेगा। दैट इज द पावर ऑफ डेटा साइंस। We'll come to the next sector, that is healthcare. Medical image analysis, drug discovery and diagnosis predictions, these are the three main sectors in healthcare wherein data science is used widely. Using classification algorithms, physicians are now able to diagnose cancer and tumors at an early stage. With the help of algorithms, this is the type of algorithm, like classification algorithm, physicians are not able to diagnose cancer and tumors. With the help of data science, what they are able to do is they are able to separate the person from a healthy person by using data science. That person is not having cancer and that person is having cancer, even when the symptoms are same. But what I can do is I can use data science. If I am a doctor, I can examine on my own. Of course, that autonomous thing is going anywhere, but the thing is that I am doing the extra effort by using data science to analyze more precisely whether that person is having cancer, and if that person is having cancer, I should treat him immediately, because if I'll not treat him without if I'll not treat him early, that cancer can go at higher levels and it can cause damage. So I can use data science for analysis of that person, and I can detect tumors or cancer at a very early stage, even before when the doctors are doing it manually. Doctors 6 महीने बता रहे, मैं डॉक्टर होके डेटा साइंस यूज करके मैं 6 महीने पहले डायग्नोस कर ले रहा हूँ, ठीक है ना। Genetic industries also use data science for examining and classifying the patterns of genomic sequences. If some defect or something is there in the parent, that thing is used by genetic industries, and that genetic industry is using data science to classify whether that the offspring will have that thing or not. Next is several virtual assistants are also assisting patients to cure their physical and mental diseases.
वर्चुअल असिस्टेंट्स दे हैव सम मॉडल्स इनबिल्ट, लाइक कंपनी से मॉडल बन के उनके साथ कुछ मॉडल होते हैं, ठीक है ना, बोल वाले एग्जांपल, तो मॉडल बन जाता है और मॉडल उनके अंदर इनबिल्ट हो जाता है वर्चुअल असिस्टेंट्स के अंदर, और वो ये क्लासीफाई कर लेते हैं कि यार ये बंदा इस तरीके से बीमार है, ठीक है ना, सो आई शुड हेल्प हिम। अब वो हेल्प कैसे करेगा कि यार मुझे सिखाया ये गया है कि अगर वो बंदे को बेहोश हो जाए तो क्या करना है, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि यार आपने सिर्फ और सिर्फ एल्गोरिदम्स डाल के उस मॉडल को, उस रोबोट को भेज दिया, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ होती है, रिकॉग्निशन, ठीक है, आपको साउंड का सुनना, आपको यूज़र इनपुट जो लेता है, जो भी साउंड ले रहा है, जो वीडियो समझ रहा है, उसको एक टेक्सचुअल इनपुट में कन्वर्ट करना, वो भी एक बहुत बड़ा टास्क है, तो बहुत टाइम लगता है। लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंस के अंदर डेटा साइंस एक तरह से भरा हुआ होता है, डेटा साइंस की हेल्प से वो ऐसा हेल्प भी कर सकता है जो बहुत ओल्ड है, या फिर ऐसे बंदे जो उनको एक सहारे की ज़रूरत है और उनके पास कोई सहारा नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट वील कम टू दिस इज लाइक ई-कॉमर्स इज काइंड ऑफ Amazon, Flipkart वाला मॉडल। Consumer identification, analysis of reviews and recommendation system. This is what I was talking about all the time. So that this is companies such as Amazon have developed a recommendation system which track the purchase history of the customers and shows the relevant products on the home page according to the interest of that customer. बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे हमेशा इस चीज़ को याद आता है, इस चीज़ के पढ़ के। ये एग्जाम्पल है कि यार इफ़ आई एम न्यू ऑन अमेजोन, में एक नया अकाउंट, एकदम फ्रेश अकाउंट है अमेजोन, ठीक है, और अमेजोन में कुछ नहीं पता मेरे इंटरेस्ट के बारे में, मुझे क्या शो करे, वो कुछ भी शो कर रहा है। अब कुछ भी शो तो नहीं कर रहा है, जो दूसरे लोग ज़्यादा देख रहे हैं ट्रेंडिंग में, जो मेरे को वो दिखा रहा है, ठीक है, बेसिकली। अब मैं देख रहा हूँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। अब क्या होता है कि यार मान लो मेरा इंटरेस्ट, मुझे पता है मेरा इंटरेस्ट है क्रिकेट बैट्स, ठीक है, मुझे क्रिकेट पसंद है, और मुझे क्रिकेट बैट ऐसा देखना है, क्रिकेट की चीज़ों को मुझे बहुत पसंद है, ये सब चीज़ें करना। अब द थिंग इज कि मैं क्या करूँगा ना, मैं क्रिकेट बैट जो भी अगर रिकमेंड करा मेरे को, तो मैं झट से क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अब मशीन या फिर जो मॉडल है वो अमेजोन को वो पकड़ लेगा कि यार इसको क्रिकेट बैट, इसने क्लिक किया तो क्रिकेट में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है। अगले 3-4 प्रोडक्ट्स के बाद मेरे पास कुछ ना कुछ क्रिकेट का और आ जाएगा, फिर एक बैट ही आ जाएगा, मैं फिर क्लिक करूंगा, फिर वो श्योर होता रहेगा वो मॉडल कि यार अच्छा इसको पक्का और पक्का और पक्का पसंद, क्रिकेट ही पक्का है, इसको पसंद है। अब मान लो 1 महीने बाद मुझे उसको सब पता है, मुझे क्या इंटरेस्ट, मतलब क्या इंटरेस्ट है मैंने एक दिन क्रिकेट बैट्स क्लिक किया, उसके बाद मैं ये भी क्लिक कर रहा हूँ कि साथ साथ मान लो मैं कोई बुक मुझे पसंद है तो मैं बुक भी क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर अब मैं अपना होम पेज देखूंगा 1 महीने बाद अमेजोन को, सो आई विल गेट टू नो दिस कि क्रिकेट और बुक्स और एजुकेशन के अलावा बहुत ही कम चीज़ें दिख रही हैं मुझे, बिकॉज दैट एल्गोरिदम ने कैच कर लिया कि यार व्हाट आई लाइक। This is an example of a recommendation system, how Amazon or even YouTube or other platforms recommend the content to us. Next is AI conversations. What's the manufacturing is the last part. Speech recognition system, machine learning algorithms, and Alexa and Siri. Alexa and Siri use speech recognition system made by data scientists which convert human speech into textual data. If I am saying Siri, what is the time? तो सीरी क्या कह रही है कि यार द टाइम इज लेट्स से 5 o'clock, ठीक है ना, ऐसा कैसे कर रही है वो, मैं जो हूँ, मैं एप्पल हूँ, ठीक है, मैंने क्या करा, सीरी में वो चीज़ भर दी, वो चीज़ समझ ली कि यार अगर ये आएगा यूज़र इनपुट इस तरीके का आएगा, यूज़र इनपुट तो आएगा ही आएगा, लेकिन कैसे आएगा, बोल के अगर आएगा, अगर इस तरीके से उससे बोला होगा, बहुत बड़ा सिस्टम है, वो कैसे बोल रहा है, कैसे कन्वर्ट कर रहा है टेक्सचुअल डेटा को। लेकिन एप्पल ने अगर क्या सिखा दिया उस मॉडल को कि अगर यूजर इनपुट वॉइस में आता है तो तेरे को क्या करना है भैया, टेक्सचुअल डेटा में कन्वर्ट करना है। उसके बाद टेक्सचुअल डेटा में अगर कन्वर्ट करें तो वो बहुत ऑब्वियस सी बात है क्या सीधी जवाब दे देगी, उसको इतनी अक्ल दे रखी है उसने, ठीक है ना, एप्पल वालों ने। वही सेम चीज़ एलेक्सा में आती है कि यार एलेक्सा को बता दिया कि यार एलेक्सा ओपन यूट्यूब है, एलेक्सा ये चीज़ करो, एलेक्सा टर्न ऑफ द लाइट्स। अगर इस तरीके कुछ प्री डिफाइंड स्पीच या फिर एक तरीके से मतलब बोली आती है, फिर यूज़र इनपुट आता है, तो क्या होगा कि यार वही तुम एक स्पेसिफिक आंसर दोगे उस चीज़ का, ठीक है ना। अब डेटा साइंटिस्ट बनाते हैं इस चीज़ को, बाकी बहुत सारे लोग और भी हैं, ठीक है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर्स और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, रिव्यूअर्स, बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें हैं, लेकिन द थिंग इज डेटा साइंटिस्ट मोटी मोटी जो चीज़ें हैं एकदम मेन वो बता रहा है, ठीक है ना। In this, machine learning algorithms are also used which classify the user's queries and give appropriate results. भाई जाहिर सी बात है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो आप सेट पैटर्न जो आप बता रखे हो वो आप कैसे डालोगे उसमें।
दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डेटा साइंस ही होल एंड सोल यूज नहीं होता इन दीज थिंग्स, लाइक मेनी थिंग्स आर देयर, लाइक वी हैव ऑलरेडी लाइक अबाउट मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। सो एल्गोरिथम्स अगर तब तक आप नहीं डालोगे तो आप यूजर इनपुट प्री डिफाइंड है वो चीज़ कैसे करोगे, जैसे मैंने बताया, ठीक है ना। आप कैसे बताओगे कि मशीन लर्न उस मॉडल कैसे बताओगे कि यार वो चीज़ इनबिल्ट करनी है। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस इन this AI conversational bots. Next is the manufacturing part. This is the last part of this, and in this we'll going to understand maintenance scheduling, predicting problems, detecting anomalies, and automated processes. I have explained like these some of these topics in very brief, but the thing is if you'll understand data science, what is data science, तो आप सब समझ लोगे कि यार आगे आगे क्या चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग में मेंटेनेंस शेड्यूल का क्या काम हो सकता है, कुछ थोड़ा सा यहाँ भी तो यूज़ होना है यार। लेक्चर सुन रहे हो आप सब चीज़ें, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जा रहे हैं, आपको ये सब की PDF मिल जा रही है, कोई कम बड़ी बात है, PDF मिल रहा है, देखो मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब द थिंग इज कि अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाओगे, थोड़ा सा खुद का दिमाग नहीं लगाओगे तो यार मज़ा नहीं आएगा, आप समझ नहीं पाओगे, आप थोड़ा सा ना क्या कहते हैं थिंक एंड वो चीज़ नहीं कर पाओगे। अब आप खुद सोचो कि यार थोड़ा खुद सर्च करो, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा खुद सोचो, थोड़ा नोट्स बनाओ, थोड़ा थोड़ा वो, यही चीज़ से पढ़ाई होगी। इफ़ यू आर जस्ट लिसनिंग टू द लेक्चर्स तो वो चीज़ काम नहीं बनाने वाली, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आपको करनी है, साथ साथ लेक्चर सुनने के साथ अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिख रहे हो तो आपको PDF ज़रूर मिल जाएगी इस चीज़ की, डोंट वरी। लेकिन वरी करने की बात यह है कि यार थोड़ा सा यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है आपका, लेक्चर सुन के आप समझ रहे हो कि सब कुछ आ गया मेरे को, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सी चीज़ें खुद भी एक्सप्लोर करनी होगी, आपको अपनी खुद बुक खोलनी होगी। आधे बच्चों ने बुक ही नहीं खोलनी होगी अपनी, बस लेक्चर सुन लिया, फटाफट से पता चला सिलेबस क्या है, आपने यूट्यूब पर डाला, आपके पास लेक्चर आ गया। तो ऐसी चीज़ हमेशा नहीं करनी है, ठीक है ना। Industrial robots used to perform repeated activities of same kind have now mostly taken over. These robots are autonomous and make use of reinforcement learning and image recognition. Industrial robots, you might have seen in this like car manufacturing, if you have seen factories over the internet, like how cars are made. So some robot of some kind of hand is picking the like the hood of the car and it is putting over the chassis of the. But these things are already predefined because every time same chassis over the same chassis the same hood will be put. So that is a repeated task. That task is a kind of no change task. उसमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा, इसलिए if feel once tell the machine to do this and do that, हर समय वो मशीन वही काम करेगी, एक बार सिखा दिया हमने। रीइंफोर्समेंट लर्निंग ये टर्म भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है आगे करके। इमेज रिकॉग्निशन, ऑफ कोर्स लाइक वेयर इज द हुड एंड वेयर द चैसी, तो उसको पुट करने के लिए उसको देखना पड़ेगा कहाँ से, उसका कुंडा कहाँ है, उसको पकड़ने की जगह वो ऐसे करेगा, वो जब पता चलेगा जब उसमें इमेज रिकॉग्निशन आ जाएगी। until unless you put the measurements and everything, like अगर आप मशीन को ये डाल दो कि यार रोटेट योर हैंड दिस मच डिग्री, दिस मच ये, दिस मच वो, और उसमें इस तरीके से पिकअप करना है, इतनी हाइट पे, इतने सेंटीमीटर इधर, इतने सेंटीमीटर उधर के बीच में आपको पिकअप करना है, और इतने डिग्री पे आपको रोटेट करके इस साइड से डालना है, दैट थिंग इज डिफरेंट। बट अगर आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग की बात करो तो वो क्या होता है कि यार गलती करके सीखना, टेस्ट करा बेकार निकला फिर सही करा, टेस्ट करा, ये चीज़ करना, इसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ठीक है ना। नाउ वी हैव कम टू द ग्लॉसरी आप खुद भी पढ़ सकते हो वैसे, इसमें आपको डेटा एक्सपर्ट्स दे रखा है, ठीक है ना, ये ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं द स्किल्स, एवरीथिंग इज एक्सप्लेन इन डिटेल ना। NLP इज ऑल्सो देयर, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, व्हिच आई वाज टेलिंग प्रीवियसली। नेक्स्ट डेटा माइनिंग, दैट टर्म, एल्गोरिथम, सेट ऑफ स्ट्रक्चर्स और रूल्स। रीइंफोर्समेंट लर्निंग, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग दैट इज व्हाट फ्रॉम ट्रायल एंड एरर, ट्राई करा, टेस्ट करा, एरर आया, वापस करा, लूप पे, जब तक आपका मॉडल सही नहीं बैठ जाता तब तक आप ये चीज़ करते रहते हो, ये प्रोसेस होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन लर्निंग, ठीक है ना, एक ब्रांच है डेटा साइंटिस्ट, ये है हमारी लास्ट ग्लॉसरी, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना, और ये डिस्क्रिप्शन में लिंक आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, डाउनलोड कर सकते हो आप इस चीज़ को, और अच्छे से आप खुद सब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आप खुद प्रैक्टिस करो इसको, और थोड़ा सा गूगल करो, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, थोड़ी बुक खोलो, सब चीज़ आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन एफर्ट मारो, ठीक है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, एंड आई होप दैट दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर योर एग्जाम्स। सो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और ऐसी वीडियो ज़रूर आती है, पूरी प्लेलिस्ट बन जाएगी। अभी से फर्स्ट लेक्चर है, बाकी टॉपिक्स भी बिल्कुल कवर होंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।